My dear students, once again welcome to all of you. In previous video lecture we have to completed all the concept, all the formulas which are used in practice set 1.1. मतलब 1.1 में जो कॉन्सेप्ट जो फार्मूला यूज होगा उसको हम लोग इसके पहले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं. सो स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 1.1. And in your screen, as you see, this is your first question. One number line is given. Student, first draw this number line in your notebook, and first part of this question is find the distance. Find the distance with help of the number line given below. Student, find the distance between points. First is find the distance between point B and E. Student, in first part we will find distance between point B and E. Distance between point B and E. As you see in your question, number line is given and each number associated with a points. So student, from this number line we have to write the coordinate of points, and then after decide which coordinate is bigger and which coordinate is smaller, which coordinate is bigger and which coordinate is smaller. Then after write down the formula. What is formula? Distance between 2 points. What is the formula? How to find distance between 2 points? Bigger coordinate minus smaller coordinate. And after writing the formula, substitute the bigger coordinate, then write down minus, then write down smaller coordinate. So according to given number line, write down the coordinate of point B. What is the coordinate of point B? Point B coordinate is 2, and point E. What is the coordinate of point E? Point E coordinate is 5. And after writing the coordinate, decide which coordinate is bigger and which coordinate is smaller. So student, coordinate of B is 2, coordinate of is 5, bigger coordinate is 5, 5 is bigger than 2, and then write down the formula. Distance between point B and E is bigger coordinate minus smaller coordinate. Which one is bigger coordinate? Student, 5 is bigger coordinate, so we have to write here 5, minus smaller coordinate is 2, 5 minus 2 is 3, and we have to write here units. Distance of B and E is 3 units. Okay student, now second part of this, find the distance between point J and A. Find the distance between point J and A. Then first write down the coordinate of points. What is the coordinate of point J? Point J, its coordinate is minus 2, and point A, its coordinate is 1. So student, J is minus 2 and A is 1. Which one is bigger coordinate? Positive numbers are always greater than negative numbers. So student, 1 is bigger than minus 2. 1 is bigger than minus 2. Then write down the formula. Distance between point J and A. Distance between point J and A. What is the formula? Bigger coordinate minus smaller coordinate. What is the bigger coordinate student? 1. 1 is bigger coordinate, then minus. A minus a फार्मूला का माइनस है. Then smaller coordinate student minus 2. Then this is 1. Minus into minus is plus 2. This is 3 units. Student,
distance between J and A is 3 units. ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें जो बाकी का सम है वो आपको होमवर्क है, वो सब आप ट्राई करना और मुझे भरोसा है आप लोग कर लोगे. नाउ वी विल डू सेकेंड सम. Okay my dear student, now we will do second sum and in your screen second question is this. First write down second question. What is the second question? If the coordinate of A is x, if the coordinate of A is x and coordinate of B is y, find distance between AB. Student, this is given that कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज एक्स. ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? एक्स दिया है. एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज गिवन दैट वाई. क्या फाइंड आउट करना हमको? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. एंड स्टूडेंट इन फर्स्ट पार्ट एक्स इज गिवन दैट 1 एंड वाई इज गिवन दैट 7. ओके स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन है जैसा हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे. इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है. ए का कोऑर्डिनेट x दिया है और x की वैल्यू यहां पर दिया है. डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज गिवन 1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ b इज y एंड द वैल्यू ऑफ y इज 7. सो इनडायरेक्टली कोऑर्डिनेट ऑफ b इज 7. सो स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी. Then first write down the coordinate of A and coordinate of B. तो इसका solution आप ऐसे लिखोगे, coordinate of A is x, coordinate of A is x and in first part x is given that 1. Coordinate of A is x and x is equal to 1 and coordinate of B is y and y is given that 7. So after writing this, decide which coordinate is bigger and which coordinate is smaller. So student, 1 and 7 is bigger than 1. And now write down distance between AB is, first write down formula. What is the formula? Bigger coordinate minus smaller coordinate minus smaller coordinate. What is the bigger coordinate, student? 7 and smaller coordinate minus smaller coordinate 1. Then 7 minus 1 is 6 units. This is distance between point A and B. Okay student, and in second part student, the values of x and y are changed. X is 6 and y is minus 2. X is 6 and y is minus 2. Student, as you know, coordinate of A is x, so write its solution like this. Coordinate of A is x and x is given that 6 and coordinate of B is y and y is given that minus 2. And writing after this, decide which coordinate is bigger, 6 is bigger or minus 2 is bigger. Student, 6 is bigger than minus 2 because of positive numbers are always bigger than negative numbers. So distance between point A and B, write down here formula. Bigger coordinate, यहाँ पर क्या लिखेंगे? बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. देन स्टूडेंट, बिगर कोऑर्डिनेट इज 6 माइनस ए फार्मूला में है एंड योर स्मॉलर कोऑर्डिनेट इज minus 2. सो दिस इज 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 2, दिस इज 8. स्टूडेंट, इन दिस सेकेंड पार्ट, डिस्टेंस ऑफ ए बी, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 8 units. So students, remaining sums are homework for you and I hope you will be solve these remaining sums. So pause the video and note down this solution, and remaining part of these questions are homework for you. Now student, we will do third sum. Okay student, see your third question and first pause the video
and note down the question. What is the question? From the information given below, find which of the points is between the other two. If the points are not collinear, state so. वही सम जो बिटवीननेस प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था वही सम है. स्टूडेंट, इन थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज गिवन दैट डिस्टेंस बिटवीन पी आर इज 7 and distance between PQ is 10 and distance between QR is 3 units. क्या डिसाइड करना है? फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू. इसमें क्या फाइंड आउट करना है? कौन सा पॉइंट दो पॉइंट के बीच में आएगा. तो स्टूडेंट, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर then we can decide the point, any one point between other two points. But if points are not collinear, then we cannot decide any one point is between other two points. Means if points are collinear, then betweenness property exists. और कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है? इफ सम ऑफ एनी टू सेगमेंट इज इक्वल टू थर्ड, देन स्टूडेंट पॉइंट्स आर कोलिनियर. एंड यू सी distance between PR is 7, PQ is 10, distance between points QR is 3. जैसा आप देख रहे हैं PR कितना है 7 है और QR कितना है 3 है. 7 और 3 प्लस करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा. सो स्टूडेंट, इन दिस सिचुएशन पॉइंट्स आर कोलिनियर. Points are collinear, it means betweenness property exists, and if betweenness property exists, then we can decide which point is between other two points. तो जो सबसे छोटा डिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग प्लस कर देंगे. सो स्टूडेंट, डिस्टेंस बिटवीन पी आर प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर. ये देख रहे हैं ना, 7 सबसे छोटा है, 3 और 7 सबसे छोटा डिस्टेंस है. तो ये दोनों को प्लस करेंगे. किसको प्लस कर रहे हैं? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स पी आर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू आर. पी आर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी आर इज गिवन दैट 7 प्लस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स क्यू आर इज गिवन दैट 3. स्टूडेंट, 7 प्लस 3 इज 10. सो स्टूडेंट, डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ QR, this is equal to 10 and 10 is given that distance between PQ. Okay student, now if sum of any two segment is equal to third, it means points are collinear. So we have to write therefore points. कौन कौन सा 3 पॉइंट्स है इसमें? पी आर, पी क्यू, क्यू आर. मतलब मेन तो 3 पॉइंट हैं. कौन कौन सा? पी क्यू आर. सो पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर पॉइंट्स, दैट इज betweenness property exists. Betweenness property exists. If betweenness property exists, then we can decide. जब betweenness property exist होती है तो ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किन दो पॉइंट के बीच में आ रहा है. सो स्टूडेंट, किसको किसको हमने प्लस किया है? पी आर और किसको प्लस किया? क्यू आर को. तो दोनों में कौन सा पॉइंट कॉमन दिख रहा है? आर. सो राइट हियर पॉइंट आर इज बिटवीन, ए पॉइंट बीच में आएगा. पॉइंट आर इज बिटवीन द पॉइंट्स. कौन से दो पॉइंट्स के? बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू. ओके स्टूडेंट, या फिर यहां से ऐसे डिसाइड कर सकते हैं. ये सिंपल मेथड है डिसाइड करने का कि कौन सा पॉइंट बीच में आएगा. पी आर और क्यू आर दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? आर. इट मीन्स पॉइंट आर इज बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू. या फिर आप ऐसे डिसाइड कर लो, किसको किसको हमने प्लस किया है? पी आर और क्यू आर. तो पी आर और क्यू आर, तो आर तो लिखा है, आगे बढ़ा के यहाँ क्यू लिख दो. तो पॉइंट आर इज बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू. आई थिंक एवरीवन इज क्लियर. सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन.
Okay student, now second sub question of question number third. What is the second sub question of question number third? Distance between RES. Distance between RES is given that 8. Distance between ST is given that 6 and distance between RT is given that 4. सेम क्वेश्चन है, थर्ड का सेकंड है, तो वही हमको डिसाइड करना है। इसमें बताना है कौन सा पॉइंट किसके बीच में आएगा। तो कब बता सकते हैं? ये पॉइंट्स आर कोलिनियर। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आर स्टूडेंट 6 and 4. When we add 6 and 4 then we get 10 and 10 is not equal to 8. So student, in this situation points are not collinear, and if points are not collinear then betweenness property does not exist, and if betweenness property does not exist then we cannot decide which point is between other two points. Understood ना? अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो बिटवीननेस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं होती है, और जब बिटवीननेस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं होती है तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा पॉइंट बीच में आएगा। ओके स्टूडेंट, तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आर 6 and 4, तो ये दोनों को हम लोग प्लस करेंगे। डिस्टेंस ऑफ EST प्लस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट RT. Distance of ST is given that 6, distance of RT is given that 4. Student, this is equal to 10. Therefore, distance of ST plus distance of RT, this is equal to distance of RES. ये कितना आ गया? 10। तो 10 की वैल्यू RES है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ये जो इक्वल लिखा है इसको कट कर देंगे। क्यों कट करेंगे? बिकॉज ऑफ डिस्टेंस ऑफ RES इज गिवन दैट 8। सो स्टूडेंट्स, पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट्स? पॉइंट्स कौन कौन सा? इसमें 3 पॉइंट यूज किया है। पॉइंट्स R, S एंड T आर नॉट कोलिनियर। आर नॉट कोलिनियर। तीनों पॉइंट कोलिनियर है क्या? नहीं कोलिनियर है। देयरफॉर बिटवीननेस प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट। बिटवीननेस प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट। बिटवीननेस प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट। एंड स्टूडेंट, if betweenness property does not exist then we cannot decide which point is between other two point. मतलब betweenness property अगर exist नहीं हो रही है तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। बस इसका सलूशन यहीं तक हो गया। ओके स्टूडेंट, pause the video and note down the solution. Okay students, and in the question number third, total six sub questions are there, and we completed 2 sub questions of this question, and remaining sub questions are homework for you. और इसमें जो रिमेनिंग सब क्वेश्चंस बच रहे हैं क्वेश्चन, इसका 3rd पार्ट, 4th पार्ट, 5th पार्ट एंड 6th पार्ट, दीज आर होमवर्क फॉर यू स्टूडेंट। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, student, on a number line points A, B and C are such that distance of AC is 10, distance of AC is 10 and distance of CB is 8. Find distance of AB. क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस ऑफ AB। आपका क्वेश्चन वहाँ कॉर्नर में दिख रहा है। फर्स्ट नोट डाउन द क्वेश्चन। ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट्स A, B, C आर सच दैट डिस्टेंस ऑफ AC is 10, डिस्टेंस ऑफ CB is 8, देन फाइंड डिस्टेंस ऑफ AB। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? पॉइंट्स A, B, C, ये 3 पॉइंट हैं यहाँ पर। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? 3 पॉइंट्स A, B, C आर देयर एंड दीज 3 पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन। ये तीनों पॉइंट कहाँ पर हैं? नंबर लाइन पर हैं। और इसमें एक चीज लिखा है कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटी, तो मतलब ये तीनों पॉइंट लाइन पर कुछ ऐसे हो सकते हैं A, B, C
ऐसे हो सकते हैं, या फिर कैसे हो सकते हैं, BAC ऐसे हो सकते हैं, या फिर कैसे हो सकते हैं, ACB ऐसे हो सकते हैं। तो स्टूडेंट देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। स्टूडेंट देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। इसमें लिखा है कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट अंडरस्टैंड क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन देयर आर 3 points. 3 points are given and these 3 points on a number line. 2 सेगमेंट आपको दिया है, AC कितना दिया है, 10 दिया है, CB कितना दिया है, 8, and in this situation we will find distance between points A and B but considering all the possibility. जितनी possibility हो सकती है वो सबको कंसीडर करना है। तो स्टूडेंट there are 3 possibilities. 3 possibility समझ रहे हैं क्या? What is this possibility? मतलब A होगा, फिर B आएगा, फिर C. Means in first situation we consider B is between A and C. In second situation we consider A is between B and C. And in third situation we consider C is between A and B. ये तीनों सिचुएशन में हम लोग A B फाइंड आउट करेंगे। So first possibility student, first possibility. What is the first possibility? ये किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी A-B-C। ये जो हम लोग A-B-C लिखते हैं, इसका क्या मतलब? स्टूडेंट, A-B-C आर कोलिनियर पॉइंट्स वेयर B इज बिटवीन A एंड C। इसका मतलब समझ में आया क्या? A-B-C। स्टूडेंट, पॉइंट्स A-B-C आर कोलिनियर पॉइंट्स। तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर आएंगे। एंड B इज बिटवीन A एंड C। अगर डायग्राम हम लोग बनाएं तो डायग्राम ऐसे बना सकते हैं, लेट दिस इज पॉइंट A और यहाँ पॉइंट B लिख दिया, यहाँ पॉइंट लिख दिया C। एंड इन दिस सिचुएशन स्टूडेंट AC इज गिवन दैट 10, AC is given that 10 and CB means this segment is given that 8 and we will find AB। क्या फाइंड आउट करना है? AB फाइंड आउट करना। तो ऐसे सिस्टमेटिक आप डायग्राम भी बनाओगे, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी भी लिखोगे। नाउ these 3 points are collinear। AB, distance of AB from this diagram student, AB plus BC is equals to distance of AC। समझ में आए क्या? यहां से डायग्राम से आप देखो, AB और BC को प्लस करेंगे तो कौन सा सेगमेंट मिल जाएगा? AC मिल जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, वी विल फाइंड AB। सो राइट दिस डिस्टेंस ऑफ AB एज इट इज plus distance of BC। student, distance of BC is given that 8 is equals to distance of AC and distance of AC is given that 10। so distance of AB is equals to 10, this plus 8 taken this side becomes minus 8। so student, distance of AB is equal to 10 minus 8 is 2 units। एक तो सिचुएशन ऐसा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो AB का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2 यूनिट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू कंसीडर सेकेंड पॉसिबिलिटी दिस। सेकेंड पॉसिबिलिटी स्टूडेंट, सेकेंड पॉसिबिलिटी। ओके, नाउ सेकेंड पॉसिबिलिटी, second possibility। what is the second possibility? B-A-C। okay student, this is second possibility। second possibility B-A-C, it means student B, A, C are collinear points and A is between point B and C। चलो इसका डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। let this is point B, this is point A and this is point C। now AC is given that 10, this AC is given that 10 and CB is given that 8।
सी बी, यही ना सी बी कितना दिया है 8 यूनिट दिया है। सो स्टूडेंट फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम दिस फिगर इज दिस पॉसिबिलिटी पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल है क्या? ये देखो AC कितना है 10 है और ये BC कितना है 8 है। सो स्टूडेंट दिस इज नॉट पॉसिबल, सो वी हैव टू राइट दिस पॉसिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल, दिस पॉसिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटी जो है पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट, दिस वन इज क्लियर ना? इफ BAC आर कोलिनियर पॉइंट, AC कितना दिया है 10 दिया है और BC तो 10 से ज्यादा होना चाहिए, बट BC is given that 8 which is less than AC. So student this possibility is not possible. So in this situation we cannot find AB. In this situation we cannot find AB. अभी आप देखो AB और AC को प्लस करके कितना आया है 8 आया है, जबकि इसमें AC अकेले कितना है 10 है। तो 10 में कोई नंबर आप प्लस करोगे 8 आएगा क्या? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। सो स्टूडेंट नाउ वी सी थर्ड पॉसिबिलिटी। व्हाट इज द थर्ड पॉसिबिलिटी? थर्ड पॉसिबिलिटी इज A-C-B, मतलब अभी पॉइंट C को बीच में हमने ले लिया, तो इसका डायग्राम ऐसे बना दो, point A, point C and point B. Now AC is given that 10 and BC is given that 8. So this is possible. Okay student, this is AC 10 and BC is 10. Then what is the distance between point A and B? 10 plus 8 is 18. Now in this situation distance of AC plus distance of CB is equals to distance of AB. ओके स्टूडेंट, दिस वन इज क्लियर ना? ये हम डायग्राम को ही देख के लिख रहे हैं। AC प्लस CB इज इक्वल टू, AC और CB को प्लस कर दिया तो कौन सा सेगमेंट मिला? AB मिल गया। नाउ AC इज गिवन दैट 10 एंड CB इज गिवन दैट 8, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB. So 10 plus 8 is 18. 10 plus 8 is 18. So student distance between AB is equal to 18 units. Okay student, now pause the video and note down the solution. Now students, see your question number 5. First pause the video and note down the question. What is the question number 5th? Points X, Y, Z are collinear. Points X, Y, Z are collinear points, are collinear such that distance between X, Y is given that 17 and distance between Y, Z is given that 8. Then we have to find distance between X, Z. स्टूडेंट्स, इसमें ऐसा नहीं लिखा है कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज, लेकिन हम लोग पॉसिबिलिटी कंसीडर करेंगे। ओके स्टूडेंट, पॉइंट्स X, Y, Z आर कोलिनियर, X, Y is given that 17, distance of YZ is given that 8, then we will find distance between point X and Z. तो आइए पॉसिबिलिटी देखते हैं। ऐसा हो सकता है X डैश Y डैश Z, इसका मीनिंग समझ में आता है क्या? These 3 points are collinear, X डैश Y डैश Z and Y is between point X and Z. अगर कहीं ऐसा लिखा है X डैश Y डैश Z, तो इसका मतलब होता है ये तीनों पॉइंट X Y Z क्या है? कोलिनियर पॉइंट हैं, और y जो है बीच में ही आएगा। किसके बीच में? x और z के। तो इसका डायग्राम हम लोग ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर x हो गया, y हो गया और ये z हो गया। ओके स्टूडेंट, अच्छा इस सिचुएशन में हम लोग देखते हैं एक्स वाई कितना दिया है 17, एक्स वाई मतलब ये वाला सेगमेंट कितना दिया है 17 दिया है, वाई जेड कितना दिया है
वाई जेड कितना दिया है 8 दिया है। तो देखो इस सिचुएशन में हम लोग एक्स जेड निकाल सकते हैं 17 प्लस 8 करके। ओके, नाउ सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, y डैश एक्स डैश जेड। अभी x को हमने मिडल में ले लिया, बीच में ले लिया, तो अब इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा, y हो गया, x हो गया, यहाँ पर z हो गया। अब क्या क्या इसमें दिया है, x y ये वाला सेगमेंट कितना दिया है, x y 17 दिया है, एंड y z 8 दिया है। तो स्टूडेंट दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस पॉसिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। देखो वाई एक्स कितना है 17 है, तो वाई जेड तो इससे बड़ा है ना, लेकिन यहां पर कितना दिया 8, तो ये पॉसिबिलिटी जो है पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, y को मिडल में लिया, x को मिडल में लिया, अभी हम लोग z को मिडल में ले लेते हैं, x z y। तो इस सिचुएशन में हम लोग डायग्राम ऐसे बनाएंगे, x हो गया, z हो गया और y हो गया। सो स्टूडेंट x y मतलब यहां से यहां तक कितना दिया है 17 दिया है, एंड y z इज गिवन दैट 8। तो देखो 17 में से 8 निकाल देंगे, वी गेट x z। तो ये दो सिचुएशन में हम आंसर निकाल सकते हैं। ये जो पॉसिबिलिटी है पॉसिबल नहीं है, तो चाहे तो आप इसमें अपने सोल्यूशन में इंक्लूड मत करो, कोई जरूरी नहीं है। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, x डैश y डैश z। यू अंडरस्टूड दिस ना, x डैश y डैश z, इट मीन्स पॉइंट्स x y z आर कोलिनियर, मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है, और y कहाँ है, बीच में है। किसके बीच में है, x और z के बीच में है। तो इसका डायग्राम बना लेंगे हम लोग। स्टूडेंट दिस पॉइंट इज x एंड दिस पॉइंट इज y एंड दिस पॉइंट इज z। तो ऐसे सिस्टमेटिक आप डायग्राम बनाएंगे। एक्स वाई इज गिवन दैट 17, एक्स वाई कितना दिया है 17, ऐसे डायग्राम बनाएंगे। एंड वाई जेड इज गिवन दैट 8, एंड वी विल फाइंड एक्स जेड। फ्रॉम दिस सिचुएशन, फ्रॉम दिस पॉसिबिलिटी वी कैन राइट डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। ये आप देख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड, ये दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड, वी गेट डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। अंडरस्टूड ना, एक्स वाई प्लस वाई जेड, वी गेट एक्स जेड। नाउ एक्स वाई is given that 17 and yz is given that 8. This is equal to distance of xz. 17 plus 8 is 25. 25 is the distance between xz. So write the answer. Distance between point xz is 25 units. चलो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो हमने कंसीडर किया उसका आंसर आ गया 25 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट, 25 यूनिट्स। नाउ वी कंसीडर सेकेंड पॉसिबिलिटी। सेकेंड ये पॉसिबिलिटी हम इधर सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पॉसिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल, सो वी हैव टू कंसीडर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। तो यहां पर हम लोग सेकेंड ही लिखेंगे, सेकेंड पॉसिबिलिटी। चाहे तो आप थर्ड भी पॉसिबिलिटी लिख के वहां लिख सकते हैं कि दिस पॉसिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। सो स्टूडेंट थर्ड पॉसिबिलिटी इज एक्स जेड एंड वाई। ड्रॉ फिगर एक्स एंड दिस इज जेड एंड दिस इज वाई। नाउ xy is given that 17 and yz is given that 8. From this diagram what you can write, xz plus zy, distance of xz plus डिस्टेंस ऑफ जेड वाई लिखो या वाई जेड लिखो, दोनों एक ही चीज है।
एक्स जेड और जेड वाई को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई। डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड ये हमको फाइंड आउट करना है, सो राइट एज इट इज, प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इज गिवन दैट 8 and distance of xy is given that 17. Now distance of xz is given that 17. This plus 8 taken this side, minus 8. So student xz is equal to 17 minus 8 is 9. And write down the final answer. क्या हमको फाइंड आउट करना था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड। तो आंसर ऐसे लिख दो, डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड इज इक्वल टू 25, या तो 25 आंसर होगा या फिर क्या होगा 9 होगा। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, सी योर क्वेश्चन नंबर 6 एंड फर्स्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। स्केच प्रॉपर फिगर and write the answers to the following questions. Sketch proper figure। अब इसमें बोला है कि फिगर भी बनाना आपको कंपलसरी है, तो फर्स्ट स्केच द प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज गिवन दैट a dash b dash c, a dash b dash c and length of AC is 11, length of AC is 11, length of BC is 6.5, then find length of AB। क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ AB। अब आपको इसमें पॉसिबिलिटी कंसीडर नहीं करना है, बिकॉज ऑफ इन क्वेश्चन दिस इज गिवन A डैश B डैश C, वो आपको पहले से दे दिया है, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड पॉइंट B इज बिटवीन A एंड C। वो आपको पहले से दे दिया है कि ए बी सी क्या है, कोलिनियर है, पॉइंट बी जो है वो बीच में है, ए और सी के बीच में। तो फर्स्ट इसमें क्या लिखा है, स्केच द प्रॉपर फिगर, तो फिगर पे भी इस पे मार्क्स रहेगा। तो फर्स्ट ड्रॉ द फिगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ओके स्टूडेंट, लेंथ ऑफ AC, अच्छा जो लिखा है लेंथ ऑफ AC, और चाहे इसी को लिखो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C, दोनों सेम है, देयर इज नो एनी डिफरेंस। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेगमेंट ऑफ AC, तो तीनों का मीनिंग सेम, लेंथ ऑफ AC, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C, सेगमेंट AC, तीनों का मीनिंग सेम होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ड्रॉ डायग्राम। ए बी कहाँ है, बीच में है, देन पॉइंट C एंड लेंथ ऑफ AC इज गिवन दैट 11, लेंथ ऑफ AC is given that 11 and length of BC, this length BC is given that 6.5, find the distance between points। लेंथ ऑफ AB क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ AB। फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन राइट लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ AC, लेंथ ऑफ BC। आफ्टर एडिंग दीज टू सेगमेंट्स वी गेट लेंथ ऑफ AC। ये क्लियर है सबको, AB और BC ये दोनों को प्लस कर दिया तो क्या मिल गया, AC मिल गया। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, लेंथ ऑफ AB ये तो हमको फाइंड आउट करना है, सो राइट लेंथ ऑफ AB एज इट इज, प्लस लेंथ ऑफ BC is given that 6.5 and length of AC is given that 11. So student, length of AB is equals to 11, this 6.5 taken this side, minus 6.5, so length of AB is equals to 11 minus 6.5, 11 माइनस 6.5। इसमें देखो पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो, 6.5। जब हम डेसिमल का नंबर प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो डेसिमल को डेसिमल के नीचे ही लिखना होता है, इसमें डेसिमल नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो हम पॉइंट करके एक 0 बढ़ा दिए इधर। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 4.5। सो लेंथ ऑफ AB इज 4.5 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट, now pause the video and note down the solution।
Length of AB is 4.5. Number 6. See your second sub question of question number 6. If R dash S dash T, if R dash S dash T and length of ST is given that 3.7 and length of RS is given that 2.5, then find length of RT. Student, this question is very easy and this is homework for you. I hope you can solve this question, so this is homework for you. Okay student, first draw this diagram according to this question and find RT. Okay student, now we will do next sum, third sub question of this. Okay student, see third sub question of question number 6. This is your third sub question of question number 6. First pause the video and note down the solution. Student, in this third sub question, x dash y dash z is given. It means student x, y, z are collinear and point y is between point x and z, and length of xz is given that 3√7 and length of xy is given that √7. Then find length of yz. First draw the diagram x dash y dash z. So its diagram is like this. This point is x and this point is y and this point is z. This point is y, x, y and z. Length of xz is given. Student, length of xz, this length is given that 3√7. ऐसे आपको डायग्राम बनाना है. And length of xy, this length is given that √7. Find yz, length of yz, ये find out करना है. Student, according to this figure we can write length of xy. ये देखो length of xy plus length of yz plus length of yz, we get length of xz. Now student, this is clear now. According to this figure, xy plus yz, we get length of xz. So xy is given that √7 plus length of yz, ये find out करना है, and length of xz, this is given that 3√7. Now length of yz is equal to 3√7. This √7 taken this side becomes minus √7. So student, length of yz is equals to, अब इसको कैसे माइनस करेंगे? हाउ टू सब्ट्रैक्ट √7 फ्रॉम 3√7? तो ऐसा मत करना 3√7 माइनस √7 निकल गया तो 3 बचा. ऐसा रॉन्ग है. दिस वन इज रॉन्ग. व्हाई दिस वन इज रॉन्ग? स्टूडेंट, 3√7 माइनस √7 मीन्स 1. इसका कोएफिशिएंट 1. 3√7 में से 1√7 माइनस कर दिया, वी गेट 2√7. या इसको आप ऐसे समझ सकते हो 3√7 minus 1√7. In both the term √7 is common, then remaining term is, यहाँ पर क्या बचेगा 3 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 1. 3 minus 1 is 2 √7, यहाँ पर into 2, या इसको क्या लिखेंगे 2√7. So after subtracting we get 2√7. ये अच्छे से समझ लेना, नहीं तो यहाँ पे गलती करोगे. Okay student, this is the answer of length of yz is 2√7 units. Okay student, pause the video and note down the solution. Student, now seventh question. Seventh question is last question of this practice set 1.1.
And see your last question. Which figure is formed by 3 non-collinear points? This is very simple question. You can solve this without any help. Student, which figure is formed by 3 non-collinear points? If we have 3 non-collinear points, suppose that point A, point B and point C. These 3 points are non-collinear. Which figure formed by 3 non-collinear points? Student, क्या फिगर बन रहा है? ट्रायंगल. तो by 3 non-collinear point a triangle is formed. So student, in this way we have to complete it practice set 1.1. और होमवर्क आपको वीडियो के लास्ट में दिया रहेगा. प्लीज ट्राई to solve all the homeworks. Thank you.